नमस्कार, सेंट्स ऑल द टाइम से मैं हूं कोमल। आज फिर हम पहुंच चुके हैं सोडल रोड जालंधर होटल डेज में। यहां पर आज टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाई गई है जो कि प्री नर्सरी पे है और आज बहुत सारी ब्रांचों से बहुत सारे टीचर पहुंचेंगे और मैम पहुंचेंगे अनुपमा बख्शी जी। तो चलिए देखते हैं आज का ये स्पेशल वर्कशॉप। And I'm very happy safe question came from here. That's why I said, ma'am. That's your first goal as a teacher. Your child is healthy and your child is safe. Yeah, health and safety is the most important curriculum code as per the NCA. So that is why I'm talking of physical health and physical and motor development is number one. Which teacher will tell me how you can activity which involves movement? Did I not make you move? एंड बैक पर जाना है, लाइक अगर वो ऐसे चल रहे हैं बैकवर्ड में वो ऐसे ही चलेंगे, पीछे देखिए वेरी गुड मैम प्रोग्रेस हॉपिंग सेम स्टैंडिंग लाइन पर जंपिंग यस मैम जंपिंग ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉपिंग एंड जंपिंग हॉप मैम कैंगरू की तरह जैसे रुक के हमको करना है एंड जंप हमको सेम पे जंप होगा एंड हॉप में हम आगे जाएंगे but cheetah jumps, kangaroo jumps, rabbit and what the intelligence is, what an experience, ma'am. Like she knows how many days will it take. Look, smell, right? Suppose you are knitting. Now a lady in house, she is not traditionally educated, she is not supposed to be intelligent, then how is she knitting beautiful sweaters? She is using mathematics, she is using her fine motor, she is using common sense, she is creating designs. That's intelligence. Do you know in UK every 6-year-old does crochet in schools? Crochet. Now if we do crochet, even our parents might say कि ਅਸੀਂ school ਅਸੀਂ crochet ਕਰਾਉਣ ਭੇਜਿਆ। ਪੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ because we have focused education into only books. So books are there, but let us take the intelligence out of that also. No, there are so many other ways to show intelligence. When you make your little child sleep and he jumps the pillows and goes and finds things, that the child is very naughty, but the child is intelligent also because the child is a problem solver. There are 4 skills that we are going to talk about today, which all your children must have. So first is, I'll keep talking about them. There are 4 C's. Okay? Which all of you have to compulsorily put in your classroom. So give your children opportunity to run, walk. They will have their body balance, right? And many children cannot go on slides and swings. You know that, right? They feel giddy. Should you force them? Never. Because you know so it is important because between our 2 ears we have some fluid. You know, sometimes when we move in circles we feel giddy. Okay? Have you seen a Kathak dancer? She takes 100 rounds but her hands are like this. It's a balance she maintains. Or if you see those Sufi saints who keep going like this, right? So that intelligence is not there in my child. I have to develop it. Encourage your child to jump, hop. What else can we do? Slide. What else? Run. What else? Jog. Walk forward and backward. What else? Frog race. I really like frog race because then they are crouching on their body. Sack race. Well, race mein it is not about who comes first. It is about participation. Don't give winners in these classes. Okay, cognitive development we all know. Cognitive development is 3 C's. First C is critical thinking. What is critical thinking? Common sense, logic, application, problem solving, which we don't teach our children because we keep things very bookish. Right? Suppose you give your child a situation and ask your children to find a solution. They will not find a solution because we don't put our children in situations जहाँ पर उनको problem solve करना होता है because we do everything from the moment the child gets up, बच्चा खड़ा है, हमने brush कर दिया, हमने कंघी कर दी, हमने कपड़े,
पहना दिए। आप में से कौन कौन मदर्स जो हैं यंग बच्चों की, आप अपने बच्चों को खुद बोलते हैं कि तस्मे बांधो और शर्ट के बटन लगाओ? Well, because you are teachers. I'm telling you. I know of children, they have no idea, their mothers get them, and one mother very innocently told me, ma'am, फिर तो पहुंच गए ऐसी 8 बजे स्कूल। I said that you have to plan your day accordingly. Because जब बच्चे के दस में खुल जाते हैं वो ऐसे आ जाते हैं मेरे पास, मैम बांधो। It's not about I can't do it, it's about my child is now 6, my child should attempt to tie laces. So, teachers, do you know, ADLs, ADL is a skill which means activity in daily living, which means wearing clothes, taking off clothes, wearing shoes, taking off shoes, wearing socks, taking off socks. India is 1 year behind. 1 year. बहुत अच्छा कराते हो मैम, फिर भी आप थोड़ा आगे बढ़ाओ हमें, 1 साल से कम 6 महीना पीछे हो जाए फिर। Because we do not have the culture of making children do work. Because we take the plate from them, we don't feel that our children should rinse them. All that is personal. I cannot get into the personal lives of my students. But in school, so many times बच्चा रो रहा है, we pick up the finger, put some dots on the paper, cut it and we send it home and the parents are very happy. So we are just, I'm not saying you do that, but many times this happens. I'm making the mother very happy. And the mother doesn't use common sense that how can my child make this? So I have to be very clear about developing critical thinking in my child. Is my child another thing? Do you know there has been why NCF and all have come in? There was another assessment for critical thinking. We are in the bottom 10. Critical thinking skill. Because our children mug up. Learning, there is nobody who can beat us. But in the world to come, there is no learning. Teachers, your children will do jobs which are not created yet. Because of AI and because of chat GPT and because of all these things, world is changing fast. Even doctors and engineers are not watertight compartments anymore. You have biomedical engineering and things. You should think beyond your, thing. Give them opportunities where they have to use their brain. Okay? Next of the 3 C's we'll do later. Why does NCA want your children to have social, emotional and ethical development? What is social life of your children? मिलेगा ही नहीं, है ना? जो चुप है उनके अलग इश्यूज हैं, जो ज्यादा बोल रहे हैं उनके अलग इश्यूज। सो सोशल लाइफ डिपेंड करती है। अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार वो लेडी बहुत ज्यादा बात हो और शी इज वेरी गुड, शी कीप्स सिटिंग क्वाइटली, ये बेकार है, शी इज जस्ट अ क्वाइट पर्सन। सो यू हैव टू सी द पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड। सम चिल्ड्रन आर सो शाय, दैट इज नॉट अ नेगेटिव क्वालिटी। डू यू एग्री विद मी और डिसएग्री विद मी? Hitting, yes, negative quality. Hitting is asking for attention. जाते आते कोई बच्चे टक कर मार देंगे किसी को, फिर आप उसको डांटोगे, बच्चा फिर वही बड़ा ढीठ आएगी और डांट खा के उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको अटेंशन मिल जा रही है हर बार, right? So personalities are different. Teacher, your shy child has her own personality. Your talkative child has her own personality. What you have to focus on is unwanted behavior. Tell me what is unwanted behavior? Hitting, then abusing. Very fun. I wanted to hear that. Because we can't, but some children, I have heard, because the parents use that language, it is carried in the right? Simply. And the beauty of English language is that English abuses look so good. But abuse is the abuse. Right? You shut up is also not so going to be said. Right? Because an abuse in English sounds very decent, but it's an abuse. So, use of language, how it has to be done. Right? Emotional development means that it is closely connected. All our children have different personalities. Every personality is good. Abuse, I agree. Hitting, any other behavior which is unwanted? Shouting. Shouting. Snatching. Very good man. Snatching. Then, snatching means I don't know personal boundary.
मैंने पसंद आ गया, बस है मेरा। जैसे बच्चे कई बार ना किसी की पेंसिल मतलब हाँ। छीन लेते हैं, हाँ। तो फिर वो आपस में मतलब फाइट करते हैं, तो छीन लेते हैं, फिर कहते हैं मेरी है ये मेरी है, मैं लाया था घर से, मेरे पापा ने लेके दी है। So you can't say you are a liar. It's just a behavior, right? And so we have to focus on the very good man, snatching, shouting. These are very, some children just go and pinch us, see, my God, right? Unwanted behavior. So let us not ignore this. As a teacher, it is your job to handle that. We will do some behavior management also in the class because this is my expectation. And what is ethical development? Ethical means values. Why is MCF telling us we should ourselves do it? Because you see, we have entered the 21st century. We are global citizens, but we are also Indians with good values. I'm not saying other countries don't have values. I'm only talking of our own values which belong to our culture. So why does NCF have to tell us? Why can't we ourselves work on values? Values cannot be done by value education. It has to be done through life skills. What values do you think your children should have? Respect, very important, ma'am. I'll tell you why. Because आजकल ना we want our children to be confident. सारे parents also try, teachers also try. बच्चे, the difference between confident and I'm the best. My mama said I'm the best. Very good. But then there is scope for improvement also. Right? Like there's a word in Punjabi, you have to be, what do you say for modest in Punjabi? Nimana. So that, I'm not saying you should go to that extreme, but modesty is a very important trait in life. What else? Respect. Then? To be honest. वो जो the map है तो मेरा ही है, मैं अपने घर को लेके आया सी, that you can show also, right? What else? Helpfulness. घर में कोई गेस्ट आ जाए तो विश नहीं कर रहे हैं बच्चे। विश, हाँ। Yes, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। वो कह रहे हैं कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, क्या सिखाया मैम ने, क्या ये हाँ। ऐसे। ये वहाँ पे अब फिर वो पेरेंट्स आके आपको ही बोलते हैं आपने क्या सिखाया थे, विश नहीं करा। सही बात। ये अच्छा, बहुत विश में भी विश क्या होता है? नमस्ते आंटी या सत श्री अकाल आंटी। आई कांटेक्ट नहीं होता। So no harm in your teaching. There's no harm in bending a little and holding your hand and wishing properly. Because yes, you are right, ma'am. Somewhere it comes on the teacher. Greeting is a very important value. Value, it does not mean saving the democracy of India. Na? Your children don't care. There were elections, somebody lost, somebody gained, or GST आ गया है, और pollution आ गई है, कि population increase आ गया. Their values are this. Greetings, which is connected with your, like I said, humble personality. It's very important for our children to have that. There's a difference between that and being confident. Right? Helpfulness, sharing, gratitude. Very important. Sharing, not tiffin. The mother will come and fight with you. मैं सवेरे प्रॉब्लम बनाई थी, मुझे नहीं आते. ठीक है? No sharing of food, please. That is a problem. Gratitude. Gratitude means? Shukr. Very important. We have to teach it. Otherwise they will not get it. Because like she very rightly said, sometimes in today's world, school is like the service industry. मैं fees दे दूँगी. You are not teaching my child to eat. You are not teaching my child to behave. 8 hours in the school is equal to 24 hours at home. No, teaching is yours. So you better do that in the best possible way. Gratitude is very important. Let's be grateful and thankful for what we have. Not by saying thank you, but through various ways you can teach that to your child. Anything else? Acceptance. Acceptance, I was looking for word empathy, but I got a good word. What is empathy? Not sympathy. वो बेचारा के पास ये नहीं. Empathy. There are all kinds of children in your class. All kinds. So I have to be very empathetic.
I cannot say, अच्छा, wow, आपके पास इतना बड़ा pencil box है, बढ़िया. As a teacher, that's the worst thing I can do. Because other mobiles, you're right, ma'am. Your status symbol. मेरे पापा के पास iPhone है, मेरे पापा तो हीरो बन गए. और जिसके पापा के पास पता नहीं दूसरे कौन से जो भी ब्रांड्स होते हैं, सैमसंग है या ओप्पो है, जो भी है, मतलब वो पापा हीरो नहीं है. या मेरे पापा के पास कार है, मेरे पापा के पास ये वाली कार है, कोई मतलब ही नहीं है कार का स्कूल में. Everybody, you all are wearing same uniform. It's so beautiful. Why are you wearing uniforms? You tell me. Absolutely, ma'am. You all represent an organization. So your children are the same. कोई फर्क नहीं पड़ता. So I need to have empathy. I need to have understanding. Very, very important. Teachers do social stories. Social Punjab is so rich in culture and so diverse. That brings me to the next point. Cultural and artistic development. That also you have to do. What is cultural development? How? Ma'am, we have a very wrong start right from the beginning. And some things which don't make sense have been accepted for years in our culture. Who will sing that rhyme for me? Dimple cheek, rosy cheeks. Anybody know that? Chubby cheek, dimpled cheek. किसको आती है? किसको आती है? सबको आती है ना? सारे इकट्ठे गाएंगे. मैं 1, 2, 3 बोलूँ, ठीक है? 1, 2, 3 start. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeny begin, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Now let us go line by line. Chubby cheeks, dimple chin. Chubby cheeks, all children don't have in your class, right? Dimple chin. How many of your students have dimple chin? सबके dimple chin ना बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर. Okay, next two lines. Rosy lips. Are all children fair? अच्छा ठीक है, ऐसी पंजाबी बड़े सोने होते हैं, but still. Again, what about now? Fair does not mean beautiful or handsome, right? How many of your children are all fair? Different complexions, and complexion has nothing to do with looks. India is a complexion of duskiness, of olive, of brown, or whatever lovely complexion we have in India. Next two lines. Eyes are blue. Eyes are, yeah, children don't have to maybe 1 or 2, right? Eyes are blue, lovely too. Then teacher's pet. Teacher's pet वो बच्चा है जिसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं, एक ओके अलावा, right? तो मैंने एक कल्चर से एक पोएम उठाई, वो बहुत पॉपुलर है, मैंने सिखा दिया अपने बच्चों को. मेरे बच्चे गाए साल दर साल, 20 साल के होके मेरा बच्चा पूछेगा भाई ना तो मेरी ब्लू आई थी, ना मेरी फेयर स्किन थी, तो मैं टीचर्स पैड पे था ही नहीं. ये फालतू में टीचर्स पैड इज दैट क्यों होता था स्कूल में? टोटली रॉन्ग. यू एग्री विद मी और नो? कोई मतलब ही नहीं है ना. Am I saying कि वो poem खराब है या rhyme खराब है, or am I saying कि it is not applicable in my setup? It is not applicable in my setup. Why am I teaching it every year to my children? It is not there in your rhymes book, both of them. That is the reason. Because culturally, what do I have to promote? My culture. Our culture is famous in the world. So when we have adopted a language, does that mean that we have to adopt the culture also? Not really. Why did NCF have to tell us? Now in your books, what you see is a promotion of your culture. But why does NCF say? Why did we not think about it? NCF is a government body for education and they are telling us, भाई अपना culture promote करो. Nothing wrong with the culture that comes from any other country, but my culture. Now what according to you is your culture? When I say culture, what is culture? I am taking the word from NCF. Culture, what is your culture?
examples. Is it food? Is it language? Attire. Attire? Dress. Festivals? Dress up. Dance forms? Rituals? Right? So why am I not promoting my culture? Does learning English mean that I am not going to promote my culture? Does teaching English mean that now only certain kind of culture I have to promote and not my own culture? Nobody told me that. So, what is the new philosophy? We are global citizens. Punjabi as it is all over the world, we know that. Canada is sada, Australia is sada, right? But that does not mean that you forget your own culture. I'm not talking about forgetting culture. And your children, they don't know. You have to teach them that culture. That's why is it in foundational years? Because it's very important that you teach your child his or her culture. It has nothing to do with the language that child is learning. So in your LKG and UKG classes, tell me how will you promote culture? You are teaching in English, that is there. What can you do? Celebrating One minute, ma'am. I want mic so that everybody can hear. एक mic था ना दूसरा? हाँ? मेरे एक मेरे पास है दूसरा mic था। है? दूसरा mic? वो हमारे पास है रखो बेटा। Okay, ma'am. So that everybody can hear. मैम जैसे जनवरी में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इवन हम जब मैम प्रेयर करवाते हैं हमारे, तो ये चीज़ हमारी होती है कि बच्चे मतलब भारत माता की जय हो, ये चीज़ हम करते हैं डेली करते हैं। Very nice, very very nice. And it is very, please keep it up. It's very important. Yeah. हम कल उनको हर तरह की हम लोग तीनों प्रेयर भी करवा देते हैं उनको, हर जगह उनके फैंसी ड्रेसेस रखवा देते हैं कि किसी दिन पंजाबी ड्रेसेस पहन के आते हैं। हम लोग इनको इस तरीके से बच्चों को करवाते हैं। Very nice, man. Any other thing that we do? Very important. So we have talked about traditions, we have talked about prayers. How else? Pride in the clothes that I wear in my state of Punjab. That's very important because we are talking. When I say culture, obviously it belongs to the place, no? Right? Pride is very important. Now, because I just want to give the child the confidence that this is the best. I told my child a story about a guru, saint soldier. Who is saint soldier? Have you taught your children? Why is he called saint soldier? Have you taught your children? Yes. They should be told from nursery. Yes, ma'am. Very good. Because that is explaining the culture. I was talking to a group of teachers in Delhi and I was telling them, because many of them sometimes don't know. So I told them that pride means not also feeling embarrassed about any culture of your identity. I was saying that earlier it was very common that children used to go and ask for Lodi. Right? Which songs they used to sing? Sundar Mundari. Now children don't sing it because they go to English schools and Sundar Mundari is, I don't know. I go to an English school and paise jaake, why should I ask for money? Okay, so that part of Lodi festival kind of started getting subdued. Then Halloween came. सारे बच्चे जाके trick or treat मांगते हैं. Is that fancy? And my Lodi is not fancy. So when I'm asking money, singing Sundar Mundari, oh God, I study in English school and I'm asking money. So but I study in the same English school and I'm asking money for Halloween, then that becomes fancy because it's not. So again, I am not comparing any culture. I am not comparing any celebration. I am not trying to prove one is better or the other is better. But you got my point. I have to have some pride in whatever I celebrate. And that pride will come only when you put that pride in your child's life. Whether it is Lodi, whether it is Baisakhi, your children should know that our new year has started now. Sometimes children don't know. Or this is the kind of clothes I wear. Or this is the kind of even food. We have
advertisement on TV for sarson ka saag and makki ki roti, but there will be advertisements for burgers and pizzas, and now NCF is telling us that Annaposh, start with Annaposh, tell them it is healthy food. 2023 is the year of millets. Nothing will work till, like she said, अगर parents को greet करना भी parent की expectation teacher है, तो then you take that role and do it. So because your goal as a teacher is social, emotional, ethical, cultural development, and now also artistic. So what is artistic? What is artistic development? What is art? Kala. How now my छोटा सा child doesn't know फुलकारी और बाल और so how will I know? Okay. Now what kind of art and what kind of drawing and what kind of painting? Like I gave you the example last year, remember? Scenery. What was the example I gave you? All of you draw scenery in your mind. No, did you draw the sceneries? Did you draw the scenery? So all of us are drawing this scenery for ages. Anna? What's the point? Everybody is drawing the same scenery. This is no art. Your art teacher in grade 5 will again teach the same scenery. Under the mountain there will be palm tree and the child will get A+. Because the teacher has to use critical thinking. Which tree you have to show under the mountains? So how will you promote art in your class? Does that mean art, drawing? Does that mean using colors, or does that mean understanding activities through art? You tell me. Example. Yes, ma'am. Where is the mic? आर्ट हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे विद एक्टिविटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वूल एक्टिविटी कर रहे हैं या कॉटन एक्टिविटी कर रहे हैं, शीट से हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे और बच्चों को बोलेंगे इसमें हमने कॉटन पेस्ट करनी है। ठीक है, कुछ फ्लावर बनाया है, हम कोई भी हम पल्सेस बोल सकते हैं, कोई भी पल्स बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं इसको पेस्ट करो। ये बच्चे की माइंड वर्क हो रहा है, एक तो उनकी एक्टिविटी हो रही है, प्लस उन्हें पता है भी ये हम एक आर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई है मैंगोलर से माइंड डेवलप हो रहा है, बिकॉज आपके पेरेंट्स को नहीं समझने वाला आने वाला कि ये मार्जिन की तीलियां चिपका के कॉटन चिपका के माइंड कैसे डेवलप हो रहा है। माइंड को डेवलप हो रहा है 1 to 10 लिख के 100 टाइम्स ना, तो वो आपको दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। और एग्जांपल दो आप मुझे, ठीक है मैम, गुड एग्जांपल। बाकी लोग लीफ रेडी करवा सकते हैं हम बच्चों को। जवाब सारे इधर से ही आ रहे हैं, उधर से आया भी नहीं, अभी इनका इसी तरह से है मैम। जैसे उनको ट्री दिखाते हैं हम, तो ताकि सबको सुने। हम उनको ट्री दिखाते हैं तो आप देख लीजिए इसका कलर क्या, लीफ का ट्री कैसा बना है, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कई बच्चे कर भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, थिंकिंग होती है वैसी। मैम वो बच्चे कब करेंगे जब मेरे माइंड में एज ए टीचर एक ही सीनरी नहीं घुसी हुई कि बेटा आपने ये ट्री सही नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे माइंड में जो ट्री है जिसके ऐसे ही कर्व जाएगा ऊपर ऐसे ही पेड़ बन गया। मैम आर्ट अपना अपना थिंकिंग एग्जैक्टली, सो टीचर दिस इज द थिंग। शेप चाहे कोई भी, बट उनको होता है पता कि हमने क्या बनाना है, मैंगो ट्री बनाना है कि नीम का ट्री बनाना है हमें। Actually. और उनको कलर्स का पता होता है कि इसका ग्रीन कलर है, इसका लाइट है, Absolutely. ब्राउन कलर किसका Right. है। तो ये चीज़ हम सिखाते हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे कई बार हम थंब पेंटिंग करवा देते हैं, ट्री बच्चा बनाता है तो उससे आप मतलब कहते होता हैं है हम कि पेंटिंग से कुछ भी बना लो बच्चे। बिल्कुल, कुछ भी बनाइए, आप तो करते रहिए, बिकॉज आर्ट बुक में तो एक्टिविटीज हैं ही हैं। ओके, somebody wants to speak at the back. लेडी मैम यूजिंग शेप्स, हाँ। मतलब जैसे बच्चे बिस्किट्स खाते हैं, बिस्किट्स अलग अलग डिफरेंट शेप्स में होते हैं। जब हम क्लास में उनको शेप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे सर्कल,
रेक्टेंगल। तो बच्चे जब भी जैसे मतलब बिस्किट्स कहीं पर खाते हैं वो अलग अलग मतलब डिफरेंट शेप्स के लेके उनको माइंड में जैसे हट बना देते हैं, ऐसे उनको काफ़ी सिखा सकते हैं। ठीक है मैम, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा बिस्किट हम क्लास में डालें, बिकॉज आजकल हम नई चीज़ें कह रहे हैं, बिस्किट, मैदा, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, आई टू अंडरस्टैंड कि भाई कभी कभी हम कहीं गए हमने खा लिया, वो बच्चों में नहीं होती। और प्लस बच्चों की ग्रोइंग बॉडी है, उनको रोज चाहिए भी। हाँ जी, वेजिटेबल पेंटिंग जैसे अनियन लेडी फिंगर बता सकते हैं, ग्रीन कलर बेस्ट फॉर योर हेल्थ, सिखा सकते हैं उनको। यू वांट टू ईट इट और नॉट? नो। बच्चे यही बोलते हैं नो, लेकिन हम उनको बताते हैं कि ये ग्रीन वेजिटेबल वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ जी, ऐसे हाँ जी, हेल्दी फूड है, हेल्दी जैसे हम कई बार टेबल पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, फिर हम छुपा लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स था, वो तो सोच के ऐसे बताते हैं, तो ब्रेन शार्प। बिल्कुल, दैट इज द वर्ड, ब्रेन शार्प। आर्ट से ही करना है मेरे को। नाउ दीस टेबल्स, भाई माय कलीग हैज सेट दीस टेबल्स, सेम एज मैम जैसे सब करते हैं, वो सब कुछ नहीं है। मैम की वॉइस स्ट्रांग है वैसे। टीचर्स का वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? स्पेशली किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी। और मैम आजकल वो आपको क्या बोल रहे हैं? सब स्कूल जैसे मैम मैं बता रही थी कि फ्रूट्स हम ड्रॉ करके देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि कलर्स करो, और बच्चों को इसमें नॉलेज मिलती है। एक तो फ्रूट्स भी पता चलता है कि क्या कौन सा फ्रूट्स है, उनको कलर का पता चलता है। और वैसे भी हम जब ड्रॉ करवाते हैं उनको सॉन्ग के थ्रू करवाते हैं, जैसे ए एप्पल अ, उसको सॉन्ग देते हैं, उसको बच्चों के सॉन्ग का भी पता चलता है, फोनिक सॉन्ग का, और फ्रूट का भी पता चलता है, और कलर्स का। मतलब आपने 2-3 स्केल इकट्ठे कर दिए, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली एक्टिविटी। एग्जैक्टली मैम ऐसे ही करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं एज इंडियंस, हम कॉन्सेप्ट लर्न करने में बहुत उत्साह है, जब अप्लाई करना आना होता है फिर हमारे बाबा को हमें भेजना पड़ता है कोचिंग सेंटर्स में नीट और जेईई क्लियर करने के लिए। क्यों जाते हैं हम? क्यों? वाई ट्यूशन कल्चर इतना पॉपुलर क्यों है टीचर? बिकॉज वो जो क्वेश्चन क्या आना है पेपर में, वो जुगाड़ ट्यूशन टीचर के पास है। और क्यों है? क्योंकि उसने देख लिया है कि ये वाला क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, ये आएगा। बहुत काफी नॉलेज होती है बच्चों को। एब्सोल्युटली मैम। एनीबॉडी एल्स? यस मैम। Firstly, ma'am, main difference is the art and drawing is the main difference. Art is the studyable, but drawing is the create something which student think. Like movie college में issue. बच्चा जो सोचता है कई बार वो मैम उनको बोल नहीं पाता, अपने मदर से डिस्कस नहीं कर पाता या अपने टीचर से नहीं डिस्कस करता, तो वो मैम जो उसकी एक क्रिएटिविटी मिनट मैम को दो माइक, ये वाला माइक चलने का। उसका बैटरी चेंज कर। लाइक मूवी मैम तारेज मीटर, जैसे ईशान को हमने देखा, कुछ बच्चे मैम आजकल इतना डिप्रेशन में चले गए हैं स्टडी के रिगार्डिंग। टीचर का बर्डन होता है, स्टूडेंट पे पेरेंट्स का बर्डन है, जो मैम वो सोचते हैं कई बार वो हमें बता नहीं पाते। अगर उनको कुछ ड्रॉ करने के लिए देंगे या कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए देंगे तो वो मैम जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसको वो ड्रॉ करते हैं। और पेरेंट्स को या टीचर को उनकी क्रिएटिविटी को ये नहीं कहना चाहिए उन्होंने क्या बना दिया, ये गोल 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 क्या करता जा रहा है, ये क्रॉस 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 क्या करता जा रहा है। वो मैम उसके थॉट्स हैं जो हमें बता नहीं रहा, या उसके माइंड में ऐसी डिप्रेशन चल रही है जो वो हमसे डिस्कस नहीं करता। That's like this is the big difference between art and drawing. Thank you. Anybody else? देखो यार, let us share views. So what I understood from everybody, that सबनो I'll just put the points. A is so many activities, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम मैम का पॉइंट ये है कि जो बच्चे की एक्सप्रेशन है हमें उसको अलाउ करना चाहिए। एस्थेटिक सेंस का मतलब है कि मेरी एस्थेटिक सेंस और आपकी एस्थेटिक सेंस में बहुत फर्क होता है, राइट? मेरी और आपकी मतलब वी आर ऑल देयर इन द क्लास। कई बच्चे अपने आसपास बहुत सब गंदा रखते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? जैसे आपके हस्बैंड्स,
उनका गंदा कर रखे हैं हमें फर्क पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता, मेरे ठीक तो है, राइट? सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक, मान मिला पर ये बेस्ट एग्जाम्पल ही है। सब अपने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने में लगे, मत करो, ठीक है? सो इट इज, हाँ, जो मेरी स्टैटिक सेंस है, स्टैटिक सेंस मतलब मेरे को क्या कैसे रखना है। समटाइम मुझे किचन एकदम साफ रखनी है और किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर सब यार दिन में एक बार साफ कर लेंगे। सो मैम इज सेइंग दैट बच्चे के माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर मैंने बच्चे की ड्राइंग को एक उसमें नहीं ढाल दिया कि यही एप्पल है, यही ट्री है, यही सीनरी है, तो मेरा बच्चा बहुत सारे वेज में उसको एक्सप्रेस कर देगा। जैसे मैम इज सेइंग चिल्ड्रन आर डिप्रेस्ड, बेसिकली बच्चे, देखो टीचर्स, हमारे साथ बच्चों के पास फोन है, हमारे बच्चों के पास वो इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते। इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रोसेस, इट इज बियॉन्ड देम। तो सब बच्चे अपना अपना माइंड अप्लाई करते हैं हर चीजों को। पहले हम बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते थे, अब हम बच्चों को प्रोटेक्टेड नहीं रखते। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं यहाँ पर आ रही थी, इससे पहले मैं हैदराबाद गई थी, मेरे कलीग थे मेरे पास, तो एयरपोर्ट्स पे वो न्यूज लगा होता है ना, तो इजराइल और हमास की फाइट they were showing children in blood, they were showing children and they were children playing at that, right? So if that child sees that, for him it is very normal to see, अच्छा बच्चों के खून निकल रहा है ये वो, but in earlier generations our children are not used to that much of violence and that much of negativity. So we have to protect the mindset of a child. There is peer pressure. That is what I was trying to say earlier. If my child has confidence, तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ वाले बच्चे के पास क्या है, उसका घर कैसा है, उसकी कार कैसी है, उसका पेंसिल बॉक्स कैसा है, बट ये सब चीजें बच्चों को अफेक्ट करने लगी हैं। तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं आपके बच्चों के माइंड में। तो पढ़ाई तो मुझे करनी ही है, और बाय द वे टीचर्स जो पढ़ाई करनी है वो कौन से पॉइंट पे है, देख लो आप, 5वें पॉइंट पे, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दिस इज योर 5th गोल एज अ टीचर। सो टीचर, आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम इन दिस बिकॉज दिस इज योर रिपोर्ट कार्ड नाउ। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कंपल्सरी हो गई है। इन योर रिपोर्ट कार्ड यू हैव टू शो ऑल दिस। आपके बच्चे की फिजिकल कितनी मोटर डेवलपमेंट है, आपके बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कितनी है, इमोशनल डेवलपमेंट कितनी है, एथिकल डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है, आपके बच्चे की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है। आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में ये सारे पॉइंट आपके रिपोर्ट कार्ड में आएंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। हमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपकी सेम है, बट आपके असेसमेंट का प्रोसेस चेंज हो गया, और आपकी बुक के अंदर भी वो असेसमेंट है। देखो, पहले हम बच्चों को ABCD देते थे, है ना, आपको पता है A+ खत्म हो गया, पता है आपको? पहले हम A+ देते थे। मेरी पूरी बरादरी में मेरी शांति, क्योंकि मेरे बच्चे को A+ आया है ना, उसका B+ आया है, तो फैमिली बेकार है, वो सब we have seen this happen, right? उस फैमिली में से कोई बच्चा मेडिकल में निकल गया, वो फैमिली ग्रेट हो गई। जिस फैमिली में बच्चा ट्राई कर रहा था मेडिकल में नहीं निकला, वो फैमिली बेकार हो गई। 10 साल बाद चाहे वो बच्चा बेटर करे, फिर भी आपको लगेगा देखो मेडिकल नहीं क्लियर किया उसने इंजीनियरिंग नहीं क्लियर की, है ना। तो वो वाले पैरामीटर्स कहीं पे, अब आपके पैरामीटर्स हैं OAD। For your understanding only, O कौन सा बच्चा है जिसको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो आपके 85 to 100% होते हैं ना बच्चे। आपने अभी टॉपिक कराया भी नहीं, वो आपके बच्चे को ऑलरेडी आता है, होते हैं ना ऐसे बच्चे, आपसे 4 कदम आगे, वो आपको पढ़ाने भी नहीं देंगे दूसरे को, क्योंकि उनको तो आता है। Raise your hand if you have such children in your class. वो बच्चों को कैसे आता है भाई बहन? उनकी क्रिटिकल थिंकिंग काम कर रही है अपने आप ही। हाँ, आपने उनको सिखाया ये कैसे करना है, उन्होंने ये नहीं समझा, उन्होंने स्किल समझा।
Z तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो वो है। अच्छा, आपके असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, नंबरों पे नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए मार्क्स बता रही हूँ क्योंकि अगर आप यू नीड टू नो कि आप उनको मार्क कैसे करोगे। अगर 25 बच्चों की क्लास है, वो 5 बच्चे कुछ हो जाए वो अपने आप ही चलते जाएंगे, और आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जो कुछ हो जाए वो नहीं समझ पाएंगे। Am I right? हम सबकी क्लास में है वो बच्चे, तो उनकी मुझे सपोर्ट करनी है भाई, है ना? और 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो बस अब चलते ही जाएंगे आपके साथ। मैम ने पढ़ा दिया, मैंने कर लिया, होमवर्क भी कर लिया, मैम होमवर्क हो गया, मैम ने कर दिया, वो आपके हिसाब से चलते जाएंगे। सो O मीन्स मेरे को स्किल आता है, A मीन्स मैं स्किल की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। वो जो आपके 60% से लेकर 85%, 60 तो नहीं 50% से लेकर 85% तक बच्चे होते हैं, ठीक है? 80 से 100 तक मैम O हो गया आपका। 60 to 85, देखो मैम ये भी मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ टीचर्स को, फिर आप मार्क कैसे करोगे ना भाई। आपका 85 to 100 O है, मीन्स उसको स्किल आता है, और उस स्किल में आपको भी पता है कि टीचर आपका कंट्रीब्यूशन है नहीं है, उसको आता है। A है जो, यानी कि आपका 50% से 85%। अब एक और चीज है, पहले होता था A B C D, अब हो गए 3 ग्रेड, तो बीच वाला ग्रेड का रेंज बढ़ गया, क्योंकि जिसको नहीं आता वो या तो शैतान है, वो सुन नहीं रही आपकी, या उसका भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अगली क्लास में आप समझाओगे और समझ लेगी, या उसका ध्यान अपनी फ्रेंड्स में है। होते हैं ना, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ध्यान नहीं देती वरना इसको सब आता है। हम सब बोलते हैं ऐसे बच्चे। तो मैं जो A B C D है, जो बीच वाली रेंज है B और C, उन्होंने इसको कंबाइन करके A किया, मतलब आई एम प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द स्किल, मुझे ये स्किल आ जाएगा, मुझमें ये कैपेबिलिटी है। और सबसे बड़ी चेंज B में है, जिसको स्किल आता ही नहीं, जिसको पहले D कहते थे, उसकी डिस्क्रिप्शन है आई विल गेट द स्किल इन ड्यू टाइम, मतलब मेरे को स्किल आ जाएगा, अगले महीने आएगा, अगले साल आएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो टीचर हूँ। तो आपने उसको डी देना है, डी नहीं देना है बिल्कुल। हम फेल तो कर ही नहीं सकते बच्चों को, तो मैंने टीचर आज नहीं, फिर वो बच्चे 9th में फंस जाते हैं जाके 10th में, इट्स अ फैक्ट ऑल्सो। तो वहां पर हमें डिफरेंशिएटेड लर्निंग, जो आपकी आप एलकेजी यूकेजी सिलेबस यूज करते हो, उसमें एक्टिविटीज हैं, उसमें आप वर्कशीट यूज करते हो, आप एनिमेशन यूज करते हो, किसको एनिमेशन समझ आ रही है, किसी को वर्कशीट समझ में आ रही है, तो मिक्स एंड मैच होके बच्चे कुछ ना कुछ समझ आते हैं। तो ये आपके ग्रेड्स हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड में ये सारे पॉइंट कंपल्सरी हो गए हैं। फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, पॉजिटिव एटीट्यूड, I am learning joyfully, ठीक है? I am learning joyfully में क्या मतलब है मेरा? खुशी के साथ। आपको लगता है आपके बच्चे जॉयफुली सीखते हैं? नॉर्मली टीचर को लगता है नहीं, they are very happy, बस उनको अपने हिसाब से। मैम देखो भाई, अगर आप स्माइल नहीं कर रहे तो आप नाराज हो, अगर आप चिल्लाते हो तो आप खुश हो। आपको नहीं बोले वो, पर जब घर जाके वो मैम खेलते हैं तो गलती वाली मैम बनेंगे आज, चिल्लाते हो। बिल्कुल 100% आपकी मदद को आपके डायलॉग भी पता है कादर खान वाले, कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, होता वो बच्चे बोलते कर जाते, बिकॉज चिल्ड्रन आर गुड एट फिट एंड प्ले, है ना? तो मुझे तो अपना कनेक्ट पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि एज फैक्टर ऐसा है ना। अगर आप 12th के भी बच्चे को रोज बोलोगे कि मैम मेरा आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो उनको समझ नहीं आता बियॉन्ड द पॉइंट की होना क्या होता है लाइफ में। सबका हो जाता है कुछ ना कुछ, देखा जाए तो, बट यू नो दैट प्रेशर। सो इन प्री प्राइमरी अब इतने सारे गोल्स के लिए मेरा रोल क्या है भाई? वो तो सबको पता है टीचर का रोल प्राइमरी है भाई, यू हैव टू बी पॉजिटिव,
अब बहुत सारी नए थॉट प्रोसेसेस हमें बताए जा रहे हैं। अगर आप जून प्लस देखो उसमें कहीं आपको रेड कलर नहीं मिलेगा, उसमें ब्रिक कलर मिलेगा हर जगह। उसका देखो एक क्यूट फिलॉसफी भी है। आपको अपने डिक्टेशन याद है स्कूल टाइम की? गोले 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 क्रॉस क्रॉस, वो डिक्टेशन के 6 वर्ड लिख के किसी को स्पेलिंग आए किसी को नहीं आए, अपने आप लर्न करके आए ना स्पेलिंग, राइट? सो अब टीचर का एटीट्यूड क्या है? पहली बात तो टीचर हैज टू बी इन कंट्रोल ऑफ द क्लास। अब टीचर को चिल्लाना भी नहीं है, आपको डेफिनेटली मारना भी नहीं है, आप बच्चों को टच भी नहीं कर सकते। देखो इंडिया में ऐसे करके, मैम प्लीज मुझे माफ करना, आप मेरे को मत जेल करवा देना, हम ऐसे करते हैं बच्चों को, राइट? यू शुड पुल द चीक, वेरी कॉमन, यू नो इट इज नॉट अलाउड नाउ, है ना? You can't go and pull the cheeks of your child. It was so common. This is how we used to play with children. अब आप वो भी नहीं कर सकते, अब मार नहीं सकते, अब डांट नहीं सकते, तो आप ये सब कैसे कराओगे? ऊपर से आर्ट, म्यूजिक, मूवमेंट, तो क्लास नहीं होना चाहिए आपकी क्लास में। तो उसके लिए जो बहुत वैलिड मेरे को जो पॉइंट्स आए थे, जो एनसीआर में भी है, बिहेवियर और सेफ्टी, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे हम। अब बिहेवियर का क्या मतलब है? हाँ जी, आगे है ना? बिहेवियर मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। देखो बिहेवियर मैनेजमेंट में एक तो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड बुक्स है, कल्चरली कि वी फील के बच्चे एक्सपेंसिव नहीं होंगे। व्हाट डू वी डू इन पंजाब? What is the term used? We all know, chittar. You don't know chittar पहने ना, pretty could say that to the children. So it is the most normalized word. मतलब जो word मैं रोज सुनती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उसको, right? कनाडा से अपने बेटे को यहाँ पे लाता है कल्चर सिखाने है। अच्छा एक मिनट, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। ओके, मैम एक फिल्म आई है न्यू, अच्छा सबको बताओ ना मैम। उसमें वो कनाडा से लेके आता है अपने बेटे को कि यहाँ का मतलब मैं कल्चर सिखाना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे मार खा खा के बड़ा हूँ। तो वो जो उसका बेटा होता है उसको घूमता नहीं है ना जब, तो पुलिस कंप्लेंट करता है उसको, तो इसीलिए वो इंडिया लेके आता है उसको, इसको थपेड़े मारने हैं, इसको कल्चर सिखाने। तो देखो बड़ी बात है, पर देखो जैसे मैम ने कहा उसको कल्चर सिखाना है, कल्चर क्या है? चित्तर पहन के सीधा हो जाएगा, राइट? क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट। बट अब हो गए चित्तर पहन यहाँ भी, तो अब हम क्या करेंगे? बिहेवियर मैनेजमेंट। अब हमारे बच्चों को आदत एक डिफरेंट स्टाइल की है। देखो चिल्ड्रन में भी ना, मदर्स आर नॉट बैड, टीचर्स आर नॉट बैड, समटाइम्स इट इज अंडरस्टूड। इट इज, देखो पहले क्या होता था, एक डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग होती थी। जैसे अगर मैं अपना बचपन देखूं, हम तो खेलते रहते थे बाहर, प्यास लगी पानी पीने भी घर नहीं जाते थे, मम्मी बोली बैठो होमवर्क करो, कहीं से भी पानी में किसी की पाइप से घड़ों में से पी लिया, कोई मिनरल वाटर नहीं, सब बच गए हम लोग। आजकल के बच्चे तो बच भी नहीं पाएंगे बिना मिनरल वाटर के। तो वो एक डिफरेंट कल्चर था। सो मैं जो आपने पॉइंट रेज किया ये है कि 21st सेंचुरी का जो बच्चा है भाई, उसका बिहेवियर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो टीचर आई वांट टू स्पेंड 5 मिनट्स ऑन इट, बिकॉज ये एनसीआर का गोल भी है। तो हर बिहेवियर, ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव है, हर बिहेवियर को एबीसी कहा जाता है। एबीसी क्यों कहा जाता है? बीच में है बिहेवियर। मेरे बच्चे का कोई बिहेवियर हुआ जो कि अनवांटेड है, ठीक है? अब ये मैं चाइल्ड साइकोलॉजी टर्म्स में करूँ, मतलब नॉट इन एनी स्पेसिफिक कल्चर, पंजाबी और एनी अदर कल्चर। हर बिहेवियर के सामने एंटीसीडेंट होता है, यानी कि हर बिहेवियर के पहले कुछ होता है जिसकी वजह से बिहेवियर होता है। मम्मी ने कहा वापस आओ पढ़ो, मैंने नहीं सुना, तो बिहेवियर चाहे मम्मी का हुआ चाहे मेरा हुआ, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको। एंटीसीडेंट में बिहेवियर से पहले कुछ हुआ, ठीक है, फिर बिहेवियर हुआ, फिर सी मतलब उस बिहेवियर का हुआ कॉन्सिक्वेंस।
यानी कि उस बिहेवियर के बाद क्या हुआ। भैया जी आप ना बाहर जाके बात कर लीजिए, अब बाहर जाके बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ, बिकॉज थोड़ा डिस्टर्ब हो, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उस बिहेवियर के बाद, चित्र पड़े कि नहीं पड़े, बेसिकली वो कॉन्सिक्वेंस डिटरमिन करता है कि बिहेवियर दोबारा होगा कि नहीं, क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। एंटीसीडेंट का मतलब है एनवायरमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा कोई फ्रेंड आया, जाते जाते उसने मुझे ऐसे मार दिया, अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसे जवाब दूं। आते जाते कोई मेरे से रूड हो गया, हमारी लाइफ में भी कैसे होता है, राइट? अब बच्चे को किसी चीज ने भी ट्रिगर कर दिया क्लास में, उसको पसंद नहीं आ रही कोई बात, उसने जाके उठा, उसने जाके थप्पड़ मारना, छीन लिया, जैसे हम वो मैम से बात कर रहे थे, मेरे को पेंसिल अच्छी लगी, ये मेरी है। एंटीसीडेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, बिहेवियर तो होगा ही होगा, कंट्रोल किस पे है, मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यानी कि उस बिहेवियर का नतीजा क्या हुआ, उस पर डिपेंड करेगा बिहेवियर दोबारा हुआ कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब बच्चे टैंट्रम शो करते हैं, सबको पता है टैंट्रम क्या होता है? टैंट्रम रोना, चिल्लाना, बेसिकली मम्मी की नाक कटवाना घर पे। हाँ, बच्चे करते हैं, मदद कहती है मेरी नाक कटवा दी तुमने, वेरी नॉर्मल, इट इज हैपेंस, राइट? अब उसका अगर एग्जाम्पल है, अब एक बच्चा, चलो मदर ने ले लेते एग्जाम्पल, एक बच्चा मदर के साथ बाजार गया, ठीक है, मदर ने कहा हम साग लेके आएंगे, उनसे थैला पकड़ा हुआ है, कोई भी नॉर्मल सीन आप इमेजिन करो, कोई फैंसी हम नहीं इमेजिन करेंगे। बच्चा गया तो थैला लेके, मम्मी ने कहा साग लेके आएंगे, बच्चे को दुकान देखी, उसमें वो लेटेस्ट वाले जो आजकल आए ना कुरकुरे हरे वाले, वो लटके हुए हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं टेस्टी, बच्चों को क्यों ब्लेम करना, हम भी तो खाते हैं, ठीक है, वो ऐसे लटके हुए। बच्चे ने कहा मम्मी ले दो, मम्मी ने कहा नहीं लेके देना, फिर बच्चे ने हाथ थोड़ी और ऊंची करी, मम्मी ले दो, मम्मी ने कहा नहीं लेके देना, फिर बच्चे ने और ऊंची करी हाथ, फिर मम्मी ने और जोर से डांट लगाई, फिर बच्चे ने टैंट्रम शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना, जमीन पे लेटना, कुछ भी जैसे बच्चे करते, बेइज्जती करते बेसिकली। तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री में क्या होता है, दुकानदार बोलेगा मैं 10 रुपए का ये ले दो, बच्चे को क्यों ला रहे हो, वो बीच में ऐसे आ जाएगा, कूद पड़ेगा सिचुएशन में, है ना? 10 रुपए की चीजें ले दो। अच्छा, मदर को क्या लगेगा, वो मेरी तो बेइज्जती हो रही है, ये तो बहुत रो रहा है, आसपास लोग देख रहे हैं, मम्मी बोलेगी अच्छा दे दो। तो बच्चे ने क्या सीखा, आप बताओ मुझे? चाहे मैम हो चाहे मम्मा हो, कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ, मम्मी ने ले दिया। आपको बच्चे बोले मैम फ्री पीरियड दे दो, मैम फ्री पीरियड दे दो, मैम फ्री, अच्छा जाओ। बच्चों का फर्क पड़ता है, उसने 15 बार बोला है 16, उसको तो फ्री पीरियड मिल गया। मम्मी मैगी ले दो, मम्मी मैगी ले दो, अच्छा जाओ, फिर मत खाओ, ठीक है, मगर ना खाओ, व्हाटएवर पेरेंट्स से, राइट? सो बच्चे ने सीखा कि जिद करने से मेरे को चीज मिलती है। अगर मदर उस वक्त उस जिद में गिवन ना करे और बैड मदर ऑब्वियसली बन जाए, तो वो क्या करेगी, उसको क्या करना चाहिए, आप बताओ? मार नहीं सकती, चिल्लर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये डेंजरस है, इससे दूर रहना है। और एक चीज होती है, बच्चों को बोलूं ये सेफ है। तो अगर मैं अपने बच्चों को बोलूं, अगर मैंने, ये मैं गुड टच बैड टच के बारे में बता रही हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आया था सेफ्टी का, यहाँ से आया था ना, कहीं से आया था ना। आई ड्रॉ अ चाइल्ड, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सीनरी वाली भी नहीं है मेरी ड्राइंग, तो ठीक है, ठीक है। Then I tell my child, it is यही करेंगे आप, और ये बहुत सक्सेसफुली, you know, I have also been doing it। देखो बेटा, आपको अगर कोई टच कर सकता है ना, तो वो आपकी एल्बो में टच कर सकता है ना? और आप बताओ, any part of the body you want to say? चलो, चलो, बैक में भी, बैक स्टिच,
शोल्डर, दैट्स इट। आप प्रॉपर बॉडी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। वैसे आर्म है, यहाँ पर आप instead of putting so many crosses, you will put 2 ticks, that's it. Because remember, in India, culturally, in our families, we don't take permission. बच्चे तो permission नहीं ले लेते हैं, बेटा मैं आपको हक कर लूँ। It is understood, right? So, teacher, school में you have to be very careful. Like in Delhi, there was an incident where a young child was killed in a washroom. Do you remember that incident in one school? हाँ जी, हाँ जी मैम। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल में हमने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, कोई आपको टच करो, आप बोलोगे वो it went overboard, because वो क्या था, एक सिचुएशन का रिएक्शन था। So हमें 2 चीजें माइंड में रखनी है टीचर। एक हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में क्या है, वी जनरली हाँ छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा, कोई हमारे घर में आता है वो छोटे बच्चे को गोदी में उठाता सबसे पहले, चाहे बच्चा 4 साल का हो चाहे 5 साल का हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी गोदी से उतारो बच्चा, आपको गुड टच बैड टच नहीं पता, उनकी थोड़ी इंटेंशन है वो, इट्स सोशल एटमॉस्फेयर। और हमारी कल्चर का एक, इंडियन कल्चर का एक पॉजिटिव चीज है ही कि हम बहुत बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, है ना। सो एक है कि केयरफुल आप भी रहेंगे, केयरफुल आप पेरेंट्स को भी होने के रहेंगे, पेरेंट्स को ये बोलेंगे, खुद भी बोलेंगे कि ओके किसी ने आपको शोल्डर पे टच करा तो इट इज फाइन, देखो शोल्डर का टच इज स्टिल फाइन, एल्बो पे टच करा इट इज स्टिल फाइन, not on face, not on, it's not saying not on face, not on neck, not on back, not on, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, एंड उनको अननेसेसरी बच्चों को डर लग जाता है, एंड दैट इज अगेन ऑफ नो हेल्प एंड नो यूज। अब कई लोग कहते हैं कि पहले ऐसे कुछ नहीं होता था, ये आजकल ही हो रहा है, नहीं, पहले कोई nobody was talking about it, पहले बोलते नहीं थे। हाँ, मानते हो इस बात को, अब एग्री करते हो, वी आर ऑल एडल्ट्स। हम कितनी आजकल सुनते हैं कि किसी के साथ बचपन में ये हुआ, किसी के साथ बचपन, आज लोग कभी सोशल मीडिया पे, कभी कहाँ पे अपने वो निकालने की कोशिश करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन या ट्रॉमा। यहाँ पर हाँ, तो ये इंसिडेंट, तो मैम अच्छी बात है कि इंसिडेंट बाहर आते हैं, बिकॉज आपको एनसीएफ ने भी बोल दिया चाइल्ड इज हेल्दी एंड सेफ। अब वो सेफ में अंडरस्टूड है कि ये वाली एजुकेशन मुझे बच्चे को देनी है, तो ये मेरे पे डिपेंड करेगा। ज्यादा ना करते हुए आई विल से कि किसी ने शोल्डर पे टच किया, एल्बो पे टच किया, जैसे कई बार मैं एक डायग्राम भी बनाती हूँ, उसमें इसको रेड कर देती हूँ, बाकी बॉडी को शोल्डर उस पर टेक, वो आप अपनी क्लास में जैसे आपकी, अब आपका एलकेजी का बच्चा है, वो तो पहली बार डरेगा या डरेगी कि ये कैसे हो गया। जैसे बच्चों को डांट करते हैं, वो स्ट्रेंजर है, आपको उठा के, पहले कहते थे गुब्बारे वाला उठा के ले जाएगा, बेचारा गुब्बारे वाला। वो मदर चाहती नहीं कि बच्चे गुब्बारे खरीदे, तो उन्हें अच्छे के अच्छा तरीका गुब्बारे वाला उठा के ले जाएगा। जब हम छोटे थे तो गुब्बारे वाला था जो उठा के लेके जाता था, है ना। फिर बच्चों को ये भी कहते हैं कि तुम अकेले जाओगे ना, फिर तुम्हें बैगर्स उठा लेंगे, फिर तुम्हें बैगर्स बना देंगे। सो बेसिकली पहले काम क्या करते थे, फियर से बच्चों को, यू एग्री ना, फियर से सिखाते थे, जब अकेले नहीं जाना, वहाँ ये नहीं होना, वहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर भूत आ जाएगा, कुछ भी हो जाता था पहले, है ना। सो नाउ हम उसको लॉजिकली लेंगे, और मेन चीज है कि जब भी आपकी बेटी है तो मदर्स को भी आप शेयर करो, भाई दिस इज द रियलिटी, एंड ये नहीं कि इट इज ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज फॉर बॉयज ऑल्सो। It is not just a situation where you say चलो बॉयज आप जाओ, मैं गर्ल्स को समझा रहा, ऐसा नहीं, it is everybody safety। देखो स्टीरियोटाइप भी कितने चेंज हो रहे हैं। एनसीएफ का एक डॉक्यूमेंट आया है प्ले थेरेपी पे, एनसीएफ का जब डॉक्यूमेंट आया उसके बाद एनसीईआरटी बड़े डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। कभी माय सजेशन है, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, आप कभी गूगल करो, पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है, टॉय थेरेपी, प्ले थेरेपी, तो सिंपल डॉक्यूमेंट है, उन्होंने बेसिकली आइडियाज दिए हैं कि आप बच्चों के साथ कैसे खेलोगे। तो एक आजकल उनका वीडियो रिलीज हुआ है एनसीईआरटी का, जिसमें उन्होंने दे आर टॉकिंग अबाउट जादुई पिटारा, क्योंकि जादुई पिटारा बहुत मिस इंटरप्रेट हो गया, लोगों ने डब्बे बना के दे दिए।
तो वो जादू पिटारा क्या है कि आपको बच्चों के साथ मिलकर छोटे छोटे आइटम बनाने हैं जिसके साथ आप खेलोगे। मेनली रैग डॉल्स, जैसे नॉट बार्बी बट रैग डॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब वो एक्सपर्ट जो थी वो उस वीडियो में बोल रही थी कि हमने बच्चों को घर घर का सामान दे दिया। उसके बाद आपने ये ध्यान देना है कि घर घर जब बच्चे खेल रहे हैं तो पापा जो ऑफिस जा रहे हैं वो बॉय ही ना हो, और बॉय ये ना कहे कि चल ठीक है कि ब्लू मेरा ये पिंक तुम्हारा। अगर अब ये एनसीईआरटी की वीडियो में क्यों है कि आप ट्राई करो कि जो रोल्स टिपिकली गर्ल्स को दिए जाते हैं वो बॉयज प्ले करें घर घर में। आप बताओ उससे क्या फायदा? आप सोचो उससे फायदा क्या होगा? हम लोग ये सोचते हैं ना लड़के और लेकिन हम तो सोचते हैं, लेकिन बच्चा जब वो खेलेगा, मान लो बच्चे ने बोला अच्छा ठीक है मैं खाना बना रहा हूँ तुम ऑफिस जाओ, तो उसे बच्चे के ब्रेन में क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों इक्वल है। एक्चुअली मैम यू आर राइट। आज मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, मतलब मैम आप खुद को बता ये फर्क पड़ेगा कि भाई दोनों इक्वल है। दोनों आजकल equal लड़के है। और लड़कों में कोई फर्क नहीं, दोनों कमाते भी हैं, दोनों पढ़ते भी हैं, दोनों हाँ। पे सब सेम ये हाँ। तो इसलिए वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये काम मैं नहीं करूंगा बड़े Actually. कि मेल का नहीं करना ये काम, वो भी कर सकते हैं और लड़की भी हर काम कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड मैम इज द बेस्ट एग्जांपल, शी सेड शी इज अ ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर को किताबों में कैसे दिखाया जाता है? पूजा करते हुए। एग्री और नॉट एग्री? एक ग्रैंडमदर की इमेज कोई भी स्मार्ट नहीं होती, राइट? सो ये एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है। थैंक यू मैम। एक थॉट प्रोसेस, गंदगी नहीं चाहिए किचन में, आप आओ ही मत। सो एक होता है रोल। अब आप सब वर्किंग वुमेन हो, आप यहाँ पर बैठे हो, आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, आपके घर में लोग खाना खा ही रहे हैं ना, आपने सब मैनेज किया ना। सो एक रोल जो 21st सेंचुरी के लिए डिफाइन हो रहा है, वो मुझे बच्चे को जैसे सेफ्टी का थॉट डिफरेंट है, वही मुझे प्ले से भी अलग अलग दिखाना है बच्चे को। तो इट इज पहले बुक्स में मम्मा खाना बनाती थी और पापा अखबार पढ़ते थे, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन ऑन द 21st सेंचुरी के इट इज ऑलराइट दैट मम्मा भी अखबार पढ़ सकती है, अब पापा खाना बना सकते हैं, वो आप अपना अपना घर देखो। किसको किसको अपनी किचन गंदी करनी है, दैट इज ओके। अब जोक्स अपार्ट, दैट इज अ डिफरेंट थॉट, राइट? प्लस एक स्टीरियोटिपिकल थॉट हमेशा रहता है एंड उसके लिए धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी आ रही है, या आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आप इसे एग्री करते हो? We have done it and our children will take it further. And इसमें हमेशा लड़ाई वाली सिचुएशन नहीं होती या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। इसमें ये होता है कि थॉट धीरे धीरे चेंज हो सकते हैं। मैं आज तक अपनी मदर इन लॉ को नहीं कन्विंस कर पाई कि मैं इतना ट्रैवल क्यों करती हूँ। उनको मुझे कहते हैं लोड ही नहीं है, बैठ आराम नाल। अब उनका जो कॉन्सेप्ट है बैठ आराम नाल, अब मुझे नहीं पता कि बैठ आराम नाल क्या होता है, but it does not agree with my system. But does that mean that there is a fight or a thing? I also laugh, she also laughs. Then she says, "तो मेरे टूट गई है." हाँ मैं फिर से आ रही हूँ। तो ये हमारे घर का नॉर्मल है, right? So it is not, it can be taken in a very negative way. कि you know I am traveling and she saying, and I tell her हाँ जी मैं फिर जाना है, right? So डिस्कस किया ब्रिटिश because the language came from there. अब 3-4 चीजें जो हमें इंग्लिश के बारे में we have to keep in mind. Okay? First thing, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, एक साउंड के लिए एक अक्षर होता है, राइट? अगर मैंने हिंदी में अ लिखा या मैंने पंजाबी में उड़ा लिखा, कोई भी, तो उसके लिए एक ही साउंड है। इंग्लिश में 2 लेटर्स के साथ एक साउंड है। सेंट सुल्तान टाइम्स में मैम अनुपमा बख्शी जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बातचीत। आज की जो स्पेशल क्लास थी वो कैसी रही मैम? बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रही और उसका पूरा क्रेडिट लवली टीचर्स को जाता है जिन्होंने अटेंड की इतनी देर तक, मेरी हर एक्टिविटी में इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द सेंट सोल्जर्स टीचर्स। जी थैंक यू मैम। आज बहुत से टॉपिक थे, एक ऐसा कौन सा टॉपिक था जिससे मैम ने ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करा? कम्युनिकेशन। मुझे लगता है इंग्लिश हम सिखा देते हैं बच्चों को, पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा लिख लेते हैं लर्न करके, लेकिन जब हमें उस लैंग्वेज में बातचीत करने की बारी आती है तो उसमें हमेशा से ही थोड़ा सा इशू आता है। और उसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज शेयर की टीचर्स के साथ और वो आई एम श्योर वो फॉलो करेंगी। मेरा मैसेज ये है कि मेरी जो मदर टंग है तो मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन मैं इंग्लिश सीख रही हूँ एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे उसमें सही से कम्युनिकेट करने के लिए क्या ज़रूरत है, उसका आई थिंक आज हमारा बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। जी मैम, काफ़ी मदर्स आज का ये प्रोग्राम देख रही होंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो आप ये सोचिए कि आपका बच्चा 21st सेंचुरी सिटीज़न है। टाइम्स चेंज हो चुके हैं और हमें टाइम के साथ बढ़ना है। हमें क्या नहीं छोड़ना है वो है हमारी वैल्यू, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे थॉट प्रोसेसेस। हमें क्या बदलना है वो ये कि जो चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जो चेंज एनवायरनमेंट है, उसमें हमें अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि मैं सही हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मेरा दोस्त या मेरा नेबर या मेरे आसपास कोई कर रहा है। एक आइडेंटिटी, एक कॉन्फिडेंस, एक वैल्यू सिस्टम और अपने ही साथ कंपटीशन। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे उसके साथ या इसके साथ compete नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। हम अपने बच्चों पर लाद देते हैं कि ये करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो बच्चे उनके साथ वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर के साथ बड़ा खुल जाते हैं, लेकिन घर जाके जो उनके फ्रेंड सर्कल आते हैं उनके साथ वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। टीचर के साथ एक ऐसा लगाव हो जाता है जैसे आज सभी टीचर का आपके साथ लगाव था। बिल्कुल। और उसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वो टीचर के साथ खुल जाते हैं। हमारा एफर्ट क्या होगा आज के बाद, आई एम होपिंग टीचर्स का, कि वो जो खुल जाते हैं बच्चे, वो जो कॉन्फिडेंस हो हर एक के साथ फील हो। मैं वापस आती हूँ कम्युनिकेशन पे। जब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस होगा, आई कांटेक्ट करके, बॉडी अपना पोस्चर सही रखे, तो मैं बहुत सारे अपने थॉट्स भी शेयर कर पाऊँगी लाइफ में बहुत सिचुएशंस में, और वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। और आई एम होपिंग कि ये टीचर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगी। टीचर के साथ बच्चा कॉन्फिडेंट है, वही कॉन्फिडेंस घर पे दिखाई दे। तो आपके पेरेंट्स भी, हम ये सब पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स फील कि हाँ मेरे बच्चे ने कम्युनिकेशन सीखा, मेरे बच्चे ने कॉन्फिडेंस सीखा, बिकॉज पेरेंट्स को भी इस बात का पता है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट स्किल यही है कि मैं अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे दुनिया को प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी थैंक यू सो मच मैम। आज सेंट सोल्जर टाइम्स में मैम अनुपमा बख्शी जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें सिखाई और खास करके प्री नर्सरी वाले टीचर को हर एक चीज़ लैंग्वेज में बताया, कम्युनिकेशन में बताया, कैसे कैसे बच्चों को हम डील करें, कैसे बच्चों को सिखाएं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डील किया। थैंक यू सो मच। सेंट सोल्जर टाइम्स से कोमल शर्मा की कैमरामैन अनुराग के साथ।